Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today in our lecture, we will start reaction of aluminum and uses, and we also discuss the nature of group fourth element. So we will start our lecture number 3. First, when we will talk about aluminum, then we can say that when a piece of aluminum sheet is exposed to moist air, here you can see a diagram where the piece of aluminum sheet is exposed to air, and you are very well aware about the nature of air. That air is consist of 21% uh, composition of oxygen. So there is a possibility of aluminum metal to interact with this atmospheric oxygen. As a result, a coating of aluminum oxide has been developed by the reaction between aluminum and oxygen. So when there is a formation of aluminum oxide layer, then it can act as a insulator, and the further attack of atmospheric oxygen will be stopped, because this further atmospheric oxygen will not penetrate to react with another aluminum metal atom. So in a normal condition, we can say that when a piece of aluminum sheet is exposed to air, then there is a formation of aluminum oxide which prevent the further attack of atmospheric oxygen to the further sheet of aluminum metal. So we can say that due to the formation of this aluminum oxide, the aluminum metal will not corrode easily as compared to other metal like iron and other metal, because there is no formation of oxide of that metallic nature. So the aluminum sheet are said to be corrosion free. Hopefully it is clear to all of you. Now we will see the another reaction of aluminum. We can say that when aluminum powder is heated, here you can see that the aluminum metal is heated in atmosphere, as atmosphere contain 21% of oxygen. So this aluminum has a possibility to react with this atmospheric oxygen at 800 degrees Celsius. When these react with each other, they will form aluminum oxide, that is in the form of Al2O3. And in another reaction, aluminum has a possibility to react with the atmospheric nitrogen. So again, there is a possibility of aluminum nitride. In first reaction, aluminum will react with oxygen at 800 degrees Celsius, and there is a formation of aluminum oxide. While in case of aluminum metal has again possibility with nitrogen metal to form aluminum nitride, and the formula of aluminum nitride is ALN. The next one property related to these reaction, that there is a generation of heat as well as intense white light. Here you have seen in different type of flashlight in different types of photography. So the property of aluminum to produce heat and intense white light. So the property of intense white light is widely used in flashlight photography. But dear student, there is some other drawback of aluminum metal, that aluminum metal will result in the formation of corrosion when aluminum metal are dipped in any salt solution, because of its ability to combine with both oxygen and nitrogen. So the metal is often used to remove air bubble from the molten metal. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ एल्यूमिनियम के पीस को जो है वो जंग लग गया है। यहाँ पे अभी हमने पहले बात की थी कि एल्यूमिनियम जो है वो नॉर्मली अगर ऑक्सीजन के साथ हो, उसमें कोई साल्ट सोल्यूशन मौजूद ना हो, तो एल्यूमिनियम मेटल क्या कर सकती है कि एल्यूमिनियम मेटल जो है वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, और वो कोटिंग जो है वो फर्दर प्रोटेक्ट करती है एल्यूमिनियम को फर्दर अटैक से। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में एल्यूमिनियम जो है वो क्रोयन फ्री होती है। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें कि इसकी मेटल को अगर आप यूज़ करें, फॉर एग्जांपल जहाँ ये जो बहरी जहाज़ वगैरह समुद्रों के पानी में जाते हैं, तो आप जानते हैं समुद्रों के पानी जो है वो एक मेजर सोर्स होते हैं साल्ट सोल्यूशन का। तो अगर आप शिप्स की बॉडी
इनकी एल्यूमिनियम मेटल की बनाते हैं तो वहां पर एल्यूमिनियम को बहुत बुरी तरह से जंग लग जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसलिए मैरीन पर्पस के लिए जो समुद्री सफर अगर आपने करना हो तो वहां पर मशीनरी वगैरह को एल्यूमिनियम मेटल का नहीं बनाया जाता, क्योंकि एल्यूमिनियम को जो है वहां पे बुरी तरह से जंग लग जाता है। लेकिन अगर आप साल्ट सोल्यूशन ना हो, नॉर्मल अगर आप एयर टेम्परेचर एयर की बात करेंगे तो वहां पे एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर सकती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो इस प्रॉपर्टी की बदौलत हम इसको जो मोल्टन मेटल्स होती हैं यानी डिफरेंट मेटल की प्रोसेसिंग में यूज कर लेते हैं टू रिमूव एयर बबल्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और इसका रिएक्शन आता है कि एल्यूमिनियम को जो है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिएक्शन विद हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। एज a result there is an evolution of heat by this process. So here you can see an equation that when aluminum metal will react with chlorine, they will produce aluminum chloride as well as aluminum hydride. So dear student, you will have to learn these formulas and should practice them by writing it at least 2 to 3 times. Another reaction of aluminum with hydrogen, and the reaction of aluminum with hydrogen will produce aluminum hydride. Now we will see the reaction of aluminum with acids and alkalis. अल्कलीज और एसिड्स में क्या डिफरेंस है कि एसिड्स के अंदर कोई भी एसिड लाइक ACl हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, बट यहाँ पे बच्चों आपने याद रखना है कि हम ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम के जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं एसिड्स के साथ भी और बेस के साथ भी। इट मीन इनकी नेचर एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करने की होती है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करने की होती है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं या जो ऐसे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक कहलाते हैं। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन पहले आप फर्स्ट स्टेप में ACl से पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम की नेचर डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट करने की डिफरेंट होती है। अगर आप इसको ACl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में इससे हाइड्रोजन गैस और एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन एल्यूमिनियम के बारे में याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl से तो हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट HCl H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर एल्यूमिनियम में ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को एक तो आपने गर्म करना है, यानी इतना हीट कर लेना है कि ये हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, तभी जाके रिएक्ट करेगा। तो यहाँ देखें एल्यूमिनियम का HCl से जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है। यहाँ बच्चों H2 लिखना था, यहाँ आई थिंक H3 लिखा गया है। जबकि एल्यूमिनियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने के लिए इसको एक तो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए और कोल्ड नहीं होना चाहिए। इट मीन अगर इनका रिएक्शन करवाना है तो आपको एक कंडीशन याद करनी है कि इसके सोल्यूशन को हॉट और कंसंट्रेटेड होना चाहिए, तभी जाके इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि क्या कौन सी गैस रिलीज होगी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और एल्यूमिनियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखें तो मैं आपको बोर्ड पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम लें तो एल्यूमिनियम ग्रुप थर्ड का मेंबर है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, दैट इज +3। इसी तरह जो इसका सेकंड मेंबर था दैट इज सल्फेट आइन, दैट इज SO4-2। तो जब भी फार्मूला लिखते हैं तो बच्चों हमेशा इनकी ये जो वैलेंसीज होती हैं ये क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस एक्सचेंज होती हैं। क्रॉस एक्सचेंज का मतलब ये है कि ये 2 जो है वो किसके नीचे आ जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा। अगर आपको इन फार्मूलाज को लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए इनके फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। इसका 4 इधर ही रहेगा। सिर्फ आपको बताया कि ये जो वैलेंसी है ये 3 वाली और ये 2 वाली सिर्फ और सिर्फ यही एक्सचेंज होती है, इनके साइन को आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। तो ये 2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, एल्यूमिनियम के पास, और 3 जो है वो किसके पास चला जाएगा, SO4 के पास। और इसके पास जाने पर ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो उम्मीद करती हूँ ये बात समझ आई होगी आप सबको। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक एल्यूमिनियम का रिएक्शन आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से देखा था, और जब भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो मेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट व्हेन एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड दे विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, बट द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड should be hot as well as concentrated. So by the reaction of aluminum with sulfuric acid, they will produce aluminum sulfate, water and sulfur dioxide. And dear student, the equation should be balanced. Now, another acid, that is the nitric acid.
आपने अब 3 एसिड याद रखने हैं। 1 एसिड कौन सा था जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसके साथ हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हुई थी। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या हुआ था? सल्फर डाइऑक्साइड की जनरेशन हुई थी। बट द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी hot and concentrated, while aluminum will not react with nitric acid at any concentration। यानी ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम जो मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ, चाहे आप डाइल्यूट ले लें, कंसनट्रेटेड ले लें, कंडीशन चेंज कर लें, तो एल्यूमिनियम किसी भी तौर पे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। और इस सूरत में हम ये कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो इसका रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, और इसी वजह से एल्यूमिनियम को हम इसके लिए क्या बोलते हैं? पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है कि आगे इसका इसके साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। यही वजह है कि जब भी नाइट्रिक एसिड को डिलीवर करना होता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो जो टैंक बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होता। तो इसलिए हम इनको इन्हीं कंटेनर में डाल के क्या कर देते हैं? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब एक जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि एल्यूमिनियम जो है बच्चों वो क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, कि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी। तो एसिड्स के साथ रिएक्शन आपने डिटेल में देखा, बट नाउ वी विल सी द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद बेस, दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दे विल फॉर्म अ सॉल्युबल एल्यूमिनेट, और उसका फार्मूला क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट इसको हम बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? NaAlOH4, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है। तो अगर आपके पास पेपर में आए कि write down the equation where the aluminum will show its amphoteric character, so student वहां पे आपने एल्यूमिनियम के जितने भी रिएक्शन एसिड्स के साथ हैं और बेसिस के साथ हैं ये सारे आप लिखेंगे, तो ही जाके आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बच्चों हम आते हैं एल्यूमिनियम मेटल के यूजेस की जानिब। तो हम ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल जो है वो काफ़ी हल्की या लाइट इन वेट मेटल होती है, और इसका वजन आयरन के मुकाबले में 3 टाइम क्या होता है जी? लेस होता है। और इसी के साथ जो है वो हम ये कहते हैं कि इट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी अगर आप इसकी टेंसाइल की वैल्यू फाइंड आउट करें, टेंसाइल होती है जैसे लचक, आम मेटल में तो आपको आपको तो नहीं फील होगी कि इसमें इतनी लचक है, लेकिन जब हम इसको एक मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट के साथ एल्यूमिनियम मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफरेंट मेटल्स के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो पता चलता है कि एल्यूमिनियम मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। उसके अलावा जितने भी ये एयरक्राफ्ट, यानी जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं, या जो हमारे शिप्स होती हैं, या जो कार्स होती हैं, उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम मेटल की बनाई जाती हैं। इसके अलावा चूंकि ये मेटल है, तो मेटल आप जानते हैं दे आर गुड सोर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो चूंकि ये गुड सोर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए हीट एक्सचेंजर के तौर पर भी ये वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको केमिकल में, ऑयल में, या अदर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज हीट के लिए। ठीक है। उसके अलावा बच्चों आपने इस तरह की केबल्स या वायर्स देखी होंगी, जो हैवी ड्यूटी केबल्स होती हैं, वो आमतौर पे हम एल्यूमिनियम मेटल की फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एल्यूमिनियम को जो है ये नॉन मैग्नेटिक है। क्योंकि अगर कोई चीज़ मैग्नेटिक हो तो उसको हम नॉन, ये नेविगेशनल नेविगेशनल होती है, ये जहाँ पे आपने सिमत वगैरह फाइंड आउट करनी हो, जैसे ये रडार वगैरह होते हैं, या ये जो आपके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ से आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो। जैसे आप लोगों ने इस तरह का सेटअप जो है वो अक्सर देखा होगा, ये जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं वहाँ पे हम नेविगेशनल पर्पस के लिए जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये नॉन मैग्नेटिक है, इसलिए हम इसको नेविगेशनल इक्विपमेंट में, यानी हवाई जहाज वगैरह में डिफरेंट सिमतों वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इनकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों ये जो हमारे पास स्टील और केमिकल की इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, क्योंकि मेटल्स हैं और जाहिर बात है एल्यूमिनियम मेटल है, तो ये गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंट मेटल्स के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, लाइक स्टील इंडस्ट्री या दीगर केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद चूंकि ये मेटल जहरीली नहीं है, यानी इस मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक होती है, तो इसलिए हम इसको फूड वगैरह की पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर बच्चों आपने देखा होगा ये जो मिल्क पैक के डिब्बे होते हैं, तो इनकी अंदर जो मेटल इस्तेमाल की जाती है दैट इज द एल्यूमिनियम मेटल, और इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग फूड एंड ब्रूइंग इक्विपमेंट एंड इन पैकेजिंग। तो ये जो अक्सर शराब वगैरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे भी इनके अंदर शराब वगैरह को पैकिंग करने के लिए भी हम इनको एल्यूमिनियम मेटल को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा सोर्स है कि ये डिफरेंट मेटल लाइक कॉपर है जी, मैग्नीशियम है, जिंक है, निकल है, इन सब के साथ मिलती है और डिफरेंट तरह के अलॉयज की फॉर्मेशन करती है।
उसके अलावा घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि हम अक्सर चीज़ों वगैरह को कवर करने के लिए इस तरह की एल्युमिनियम की शीट्स इस्तेमाल करते हैं, या ये जो घरों के अंदर जो खिड़कियां होती हैं या जो किचन की जो विंडोज़ होती हैं, उनके फ्रेम वगैरह में आजकल एल्युमिनियम की जो कहते हैं ना, ये एल्युमिनियम की विंडो है या एल्युमिनियम के फ्रेम है, तो उन सब की कंस्ट्रक्शन में एल्युमिनियम मेटल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो पेट्रोल वगैरह जिन टैंकों में ले जाए जाते हैं, या जो मिल्क जिन टैंकों में लेकर जाए जाते हैं, तो उनकी बॉडी, इन टैंक्स की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम मेटल की बनाई जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये फौरन से हीट को वापस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जो इसके अंदर जो मटेरियल होगा, लाइक मिल्क है या पेट्रोल है, उसकी वेपोरेशन नहीं होगी या उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये गुड सोर्स होते हैं हीट का। तो अभी आपको बताया कि ये हीट एक्सचेंजर के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए जो है वो इनके अंदर आगे से चीज़ जो है वो इनके अंदर ओवरहीट नहीं होती। उसके बाद बच्चों अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट हैं, और ग्रुप फोर्थ जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड पर मुश्तमिल है। और इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती हैं फ्रॉम कार्बन टू लेड तक। और दिस ग्रेडेशन इज ऑफ सच नेचर हाउएवर दैट देयर आर वेरी फ्यू सिमिलैरिटीज बिटवीन द एक्सट्रीम मेंबर्स, के जो इसके एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मतलब होता है जो इसके लोअर मेंबर या जो इसके हैवियर मेंबर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अपने टॉप वाले मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती हैं। और इसी वजह से लेड की प्रॉपर्टीज कार्बन से इतनी हद तक डिफरेंट है, जितनी के जैसे हम ये कहते हैं ना कि लोअर मेंबर और जो टॉप मेंबर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। किन के मुकाबले में, जिनको अगर आप कंपेयर करें ग्रुप फर्स्ट के साथ, जिसमें टॉप पर मेंबर लिथियम है और नीचे जो एक्सट्रीम मेंबर है दैट इज दी सीजियम है। तो कहते हैं सीजियम और लिथियम में इतनी वेरिएशन नहीं आती जितनी के लेड और कार्बन के अंदर आती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप चेक करें तो चूंकि ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, तो इन सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों ये जो है वो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी वैल्यूज, तो ये बच्चों आप लोगों ने इनको देख लेना है जनरल। उसके बाद अगर आप आयन की तरफ, तो हम ये कहते हैं कि इस पूरे ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन जो है ये दोनों के दोनों वाहिद हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जबकि बाकी मेंबर जो है वो इसके मेटालिक होते हैं। कार्बन के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कार्बन जो है वो सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी रखता है। सेल्फ लिंकेज का मतलब ये होता है कि कार्बन के अंदर बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी अपने दूसरे एलिमेंट यानी कार्बन के साथ ही ज्यादा होती है। तो इस सेल्फ लिंकेज एबिलिटी को हम बच्चों क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन का। तो इसी तरह से आपने नोट किया होगा कि इस कैटिनेशन की बदौलत जो है वो इसके डिफरेंट तरह के एन हेक्सेन, एन प्रोपेन, या जो डिफरेंट टाइप ऑफ होमोलोगो सीरीज आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ी थी, वो इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। और ये सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। इट मीन कार्बन के अंदर कार्बन एलिमेंट के साथ ही कंबाइन होने की एबिलिटी है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन के अंदर देखें तो सिलिकॉन टू सिलिकॉन नहीं होगी, बल्कि सिलिकॉन में ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन। इट मीन इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग लिंकेज एबिलिटी ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन एटम, के पहले एक सिलिकॉन आए, फिर ऑक्सीजन आए, फिर सिलिकॉन आए, फिर ऑक्सीजन आए। तो ये ट्रेंड जो है वो इस तरह से प्रोसीड होता रहता है। तो इन दोनों के अंदर कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल हैं। कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी, जिसे हमने कैटिनेशन का नाम दिया, वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह सिलिकॉन मेटल के अंदर जो है वो सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो थर्ड वन बच्चे जो प्रॉपर्टी आती है कार्बन और सिलिकॉन की, कि अगर आप देखें कार्बन को और सिलिकॉन को, ये दोनों के दोनों एस्टिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। अब ये एस्टिक ऑक्साइड कैसे बनाते हैं तो ये आपको बताती हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें तो बच्चों कार्बन जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट करे, देन दे विल प्रोड्यूस ऑक्साइड दैट इज नोन एज द कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर, देन दे विल प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। ठीक है। इन द सेम वे अगर ये सिलिकॉन के साथ कंबाइन होंगे तो सिलिकॉन के साथ भी सेम यही रिएक्शन होता है, और इससे जो एसिड प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज द मेटासिलिसिक एसिड। इट मीन ये जो कार्बन है और जो सिलिकॉन है, इनके ऑक्साइड की नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है। क्योंकि ये एसिडिक हैं तो इसलिए इनके अंदर एसिड की फॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंड करती है कार्बन में और किसके अंदर, सिलिकॉन में। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसके अदर मेंबर्स की, तो हम ये कहते हैं कि जो इसके अदर मेंबर्स होते हैं उनकी नेचर एम्फोटेरिक होती है, जिनमें जर्मेनियम और लेड के ऑक्साइड आते हैं। तो यानी वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे।
उसके बाद बच्चों अगर आप फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों जो हैं वो कोवलेंट फॉर्म बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जबकि जो ऑक्साइड होते हैं इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और इसके अलावा इनमें हाइड्राइड्स और क्लोराइड्स बनाने की भी एबिलिटी होती है। इसके बाद बच्चों में कहते हैं कि जो ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट है, इनके चूंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इनके अंदर ये एबिलिटी है कि या तो ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों को यूज कर लें फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए, जैसा कि ये एबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन दो मेंबर्स में, लाइक कार्बन में और सिलिकॉन में। ठीक है, तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 एंड NP2। तो +2 के अंदर क्या होगा कि कोई से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो सकते हैं, और +4 में क्या होगा, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन तो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे कि वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसे ही आप इसके नीचे वाले मेंबर्स की जानिब आए कि इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 यानी कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें क्या होगा, इन तीनों के अंदर ये अपने सारे इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी है, यानी वो अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप टीन और लैड की बात करते हैं तो टीन के अंदर स्टैनिक और प्लम्बिक के जो कंपाउंड होते हैं आर ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्टेनस और प्लम्बस कंपाउंड इज यूज फॉर बॉन्डिंग। तो ये बात आपको बच्चों समझाती हूँ यहाँ पे। तो हमने अभी किसकी बात की, एलिमेंट की बात की, लाइक टिन है जी, और लेड है। ठीक है, लेड के अंदर वैलेंसी क्या हो सकती है, +2। एक होता है लेड +2 और एक होता है लेड +4। तो अगर वैलेंसी हाई हो जाए ना, तो हाई के लिए हम लव इस्तेमाल करते हैं IC के साथ, यानी प्लम्बिक का वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो है ये वैलेंसी +2 हो तो इसके लिए हम लव इस्तेमाल करते हैं प्लम्बस। और इन द सेम वे अगर टिन है आपके पास, टिन की वैलेंसी +2 हो सकती है, अगर +2 होगी तो इसका हम नाम रखते हैं स्टेनस। और अगर आपके पास बच्चों टिन की वैलेंसी +4 होगी तो इसका हम नाम रखते हैं स्टेनिक। ठीक है, स्टेनस और स्टेनिक ये दो तरह की होती है। अब +2 में क्या हुआ है, तो चूंकि ये सारे के सारे ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इनके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज NS2 कामा NP2। तो चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सबके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो इस टीन के पास एबिलिटी है कि एक दफा वो 2 की भी शो, अगर ये 2 को लूज कर देता है दो इलेक्ट्रॉनों को P से, तो इसके S के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर भी NS2 एज वेल एज NP2, यानी ये यही वैलेंसी जो है इन सब के अंदर एग्जिस्ट करती है। +2 का मतलब क्या है कि +2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं P के वो लूज हो जाते हैं, जबकि इस केस में ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्टेनस के कंपाउंड है इसके अंदर P के सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन ये जो S के इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलते। तो जो नहीं निकलते वो क्या रहते हैं, इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि वी डोंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो यही वजह है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं एस वाले, इनर्ट इलेक्ट्रॉन वो कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। एज ए रिजल्ट ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इसके हैवियर मेंबर जो ग्रुप फोर्थ का है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये बात आप बच्चों यहाँ देखें, फर्दर आपको समझ आएगी कि अगर आप इनको देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर आप टॉप टू बॉटम आए तो टॉप टू बॉटम में ये जो टिन और लेड के कंपाउंड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 एंड 5p2 होती है, इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन सा जी, जो s ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी इसका 5s2 वाला और लेड के केस में 6s2 वाला, दोनों के दोनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। सिर्फ ये P के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है और इस लेड के भी P में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में यूज होंगे, और इस तरह से ये +2 और +2 की वैलेंसी को शो करेंगे ज्यादातर। और इसी वजह से ये कौन से कंपाउंड बनाएंगे, स्टेनस और प्लम्बस के। और जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, जो टेक पार्ट नहीं करेंगे, उनको हम क्या नाम देंगे जी, इनर्ट पेयर का। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट का। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस होता है किसके अंदर, हैवियर मेंबर में, जैसा कि लेड या टिन है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इनके अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है।
तो अभी हमने बात की कि टिन और लेड में अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाते हैं, तो अभी आपको लिख के बताया था कि अगर चारों इस्तेमाल होंगे, यानी ये नहीं है कि प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो इनके अंदर यहाँ तक एग्जिस्ट करेगी कि सिर्फ दो ही हो, बल्कि इनके पास दो तरह की एबिलिटी है कि वो +2 भी शो कर सकता है और +4 भी शो कर सकता है। तो +4 शो करेगा तो IC से एंडिंग करें, वैलेंसी कम रखनी है, +2 रखनी है, तो एंडिंग आप किससे करेंगे, OUS से करेंगे। और जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम वापस देखते हैं अपने टॉपिक पर कि टिन और लेड में या तो चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो सकते हैं, या फिर चार में से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस्तेमाल नहीं होगा और एक इस्तेमाल हो जाएगा। तो जो इस्तेमाल नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम देंगे। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का फिनोमिना हैवियर मेंबर लाइक टिन और लेड के अंदर डोमिनेट कर जाता है। इसी तरह बच्चों अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पर ये जो टिन और लेड है, इनके अंदर कौन सा फैक्टर इंक्रीज होता है, एक तो इनकी एटॉमिक मास बढ़ती है, दूसरा इनके अंदर ये मेटल्स हैं और मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो एलिमेंट का कार्बन से सिलिकॉन तक एंड देन टिन और लेड तक जो है वो प्रोनाउंस होता चला जाता है। इसके बाद बच्चों जो और डिफरेंट कॉमन प्रॉपर्टीज आती हैं ग्रुप फोर्थ की, वो ये है कि इसके तमाम एलिमेंट अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को यूज करने की एबिलिटी रखते हैं। इन सब में हाइड्रोजन से कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाने की, टेट्राक्लोराइड बनाने की और डाइऑक्साइड बनाने की एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आज के टॉपिक के हवाले से बच्चों आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।